of gas with pressure and temperature। जो ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। Combining these two laws, we get equation gives simultaneous effect of changes of pressure and temperature on the volume of gas। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਔਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅ ਗੈਸ। ठीक है, this equation is known as combined gas law or gas equation, and mathematical expression for this is PV by T is equals to constant, and also PV is equals to nRT। जो PV is equals to nRT है वो तीनों लॉज तो मिल के बनया हैगा। फर्स्ट law of Boyle's law की है PV is equals to constant। ठीक है, constant इत्थे की है R। PV equals to constant। सेकेंड जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ की हुंदा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। Third one is Avogadro law, volume is directly proportional to n number of moles। सो इन्हां तीनों लॉज नू यूज़ करके बनया PV is equal to nRT। अगर अपने कोल n की वैल्यू 1 होए तां इक्वेशन की बनूगी PV is equals to RT, and this equation is known as ideal gas equation। Next, calculate the moles of hydrogen present in a 500 ml sample of hydrogen gas at pressure of 1 bar at 20 degree centigrade Celsius। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0.083 ਬਾਰ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਨ is equals to PV by RT। okay, so P is 1 bar 1 into V is V कितना दिता होया 500 ml। सो आपां इहनूं कन्वर्ट कर लांगे डेसीमीटर क्यूब दे विच 500 into 10 raised to power -3 decimeter cube by RT। R ਦੀ वैल्यू कितनी होंदी है 0.083 0.083 क्योंकि आप आर नू डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू आर दी है जिहड़ी यूज़ कर रहे हैं इसीलिए जो वॉल्यूम है उन्होंने भी डेसीमीटर क्यूब दे विच कन्वर्ट किया तो टैंपरेचर कितना है अपने कोल 27 डिग्री सैल्सीयस दिता होया तो ये जो 273 डिग्री ऐड करांगे then answer will be 0. After the calculation answer will be 0.00201 mole। that means
Right option is B. Next is Dalton law of partial pressures. Dalton law of partial pressures ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਗੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸਮ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ equals to the total pressures. According to definition, the total pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting gases in a definite volume is equal to sum of individual pressures which each gas would exert if it occupies the same volume alone at constant temperature. सो जो P टोटल है वो किहदे इक्वल होगा P टोटल is equals to P1 plus P2 up to so on. जिन्नियां भी गैसिस है उन्हां दे इंडिविजुअल प्रैशरस दे बराबर होगा प्रैशर ऑफ टोटल गैस। ठीक है, अगर दो गैसेस है, दो अननोन गैसेस है, गैस ए एंड गैस बी, दैन पी टोटल किहदे इक्वल होगा पी ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, सो अगर आपां देखिए कि जो अपने कोल पी अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, then P is equals to nRT by V। सो P1 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ N1 ਐਂਡ P2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ N2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਟੋਟਲ ਹੈ, P टोटल T for total is equals to P1 plus P2 plus P3। okay, then N1 RT by V plus N2 RT by V plus N3 RT by V। Done. So in the next step it becomes N1 plus N2 plus N3 RT by V कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ P1 by P ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, P1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ N1 into RT by V, N1 RT by V। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ P ਟੋਟਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ N1 plus N2 plus N3। ਡਨ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ RT by V ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ V by
आर टी। सो वी दे नाल वी कैंसल, आर टी दे नाल आर कैंसल। ठीक है, अपने कोल इक्वेशन की बन जानी आ, इक्वेशन बन जूगी P1 बाय P टोटल इक्वल्स टू N1 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 नूं आपां की लिख सकते हैं N। ठीक है, इनू आपां मान सकते हैं X। डन। तां P1 किहदे इक्वल होगा, P1 नूं आपां लिख सकते हैं X1 P टोटल। सिमिलरली P2 की आऊगा X2 P टोटल। ठीक है, सिमिलरली P3 X3 P टोटल। अंडरस्टैंड? ये सीगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रैशर्स, ये डेफिनेशन सीगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ਦੇ ਵਿੱਚ डिफ्यूजन की है, डिफ्यूजन किस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज process of intermixing of two or more gases irrespective of density relationship and without the help of external agency। ठीक है, ਇਹ डिफ्यूजन ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਨੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ डिफ्यूज़ हो जाती है विदाउट एनी रिलेशनशिप, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो जो ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है मेनली आपां वो पढ़ना है। तो पहले आप डिफ्यूज़न बारे स्टडी करते हैं कि डिफ्यूज़न होंदी क्या है। डिफ्यूज़न मीनस कोई भी गैस है जिहड़ी मान लो कि आप रूम दे विच कोई गैस छड्डी है या फिर एक बॉक्स दे विच छड्डी है, मान लो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो उहदे मॉलीक्यूल्स जिहड़े खिंड जाते हैं पूरे वॉल्यूम दे विच। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फस्ट पॉइंट इज़ डिफ्यूजन किवें होंदी है गैसेस दी, ड्यू टू द रैपिड मूवमेंट ऑफ अ गैस मॉलीक्यूल्स। रैपिड मूवमेंट की वजह के नाल डिफ्यूजन होंदी है क्योंकि रैपिडली जिहड़े मॉलीक्यूल्स है गैस के मूव करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्पटी स्पेस बिटवीन मॉलीक्यूल्स। रैपिड मूवमेंट क्यों होंदी है क्योंकि मॉलीक्यूल्स दे विच बहुत ज़्यादा लार्ज जिहड़ी स्पेस होंदी है प्रेजेंट होंदी है। तो मूवमेंट किस तरीके दे नाल होंदी है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस दे विच कि मूवमेंट होंदी है हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो फस्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा दसदा कि आप ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस की है, आखिर क्यों ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली जिहड़ी ग्रैहम्स लॉ की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ग्रैहम्स लॉ दे नाल आपां सैपरेशन कर सकते हैं दो गैसिस दी जिन्हां दी डिफरेंट डेंसिटीज़ है। ठीक है, फस्ट जो इहदी एडवांटेज है वो की है, सैपरेशन, कि आपां दो गैसिस जिहड़ियां हैगियां डिफरेंट डेंसिटीज़ दियां उन्हां नूं सैपरेट कर सकते हैं। ये हैगी है फस्ट। तो सैकेंड जो प्रॉपर्टी है अपने कोल जिहड़ी इंपॉर्टेंस है ग्रैहम्स लॉ दी, वो की है कि इहदे नाल आपां डिटरमाइन कर सकते हैं डेंसिटीज़ नूं डिटरमाइन कर सकते हैं, मॉलीक्यूलर मासिस नूं डिटरमाइन कर सकते हैं, अननोन गैसिस नूं दियां नूं। देखो अगर तुहानूं कोई न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह दे नाल है कि मान लो कि एक गैस है, ठीक है, तो वो 4 टाइम्स हाइड्रोजन के नालों 4 टाइम्स फ्यूज़ आउट हो जाती है। तो मॉलीक्यूलर मास कड्डो, तो आप ग्रैहम्स लॉ नूं यूज़ करके उन्होंने कढ़ सकते हैं। ठीक है, मॉलीक्यूलर मास नूं, तो मॉलीक्यूलर मास नूं फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटीज़ नूं फाइंड कर सकते हैं, रो नूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की है अपने को, थर्ड पॉइंट है कि कोई भी आइसोटॉप्स है, अगर आइसोटॉप्स नूं आपां सैपरेट कर सकते हैं विद द हैल्प ऑफ ग्रैहम्स लॉ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਹਮਸ ਲਾਅ। So Graham's law of diffusion, it states that under similar condition of temperature and pressure, की state करता है Graham's law, it states that under similar conditions of temperature and pressure, rate of diffusion of gases are inversely proportional to square root of their densities। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किहदे इक्वल हैगा अंडर दी रूट 1 बाय डेंसिटी। दिस इज़ अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1 बाय डेंसिटी। नैक्सट जो है वो ये है कि मान लो कि अपने कोल दो गैसिज है, एक दा रेट हैगा R1, दूसरी दा रेट हैगा R2। R1 अगर रेट है R1 तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆਊਗੀ R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर दी रूट 1 बाय ρ1, मतलब डेंसिटी फॉर R1 गैस ρ1 एंड रेट फॉर सेकेंड गैस दैट इज़ R2 एंड डेंसिटी फॉर इट इज़ ρ2 एंड दिस रिलेशनशिप बिकम फॉर इट। अगर आप दोनों की रेशो ले लीए R1 बाय R2 तो ये किहदे इक्वल आऊगा अंडर दी रूट ρ2 बाय ρ1, ρ2 बाय ρ1 सेम टैंपरेचर एंड प्रैशर के उपर, ठीक है। तो ये होगी रिप्रजेंटेशन। ये जो रिप्रजेंटेशन है ये अपनी मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन ऑफ ग्रैहम्स लॉ है, ठीक है। तो नैक्सट हैगा कि वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास इज़ ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। जो मॉलिक्यूलर मास है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी है, तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी मास बाय 2 हो जूगी, ठीक है। तो हुण देखो जो अपने कोल डेंसिटी है वो हुंदी है मास इज़ इक्वल्स टू 2 ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई m, ρ2 कितनी आ गई m2 बाय 2, ρ1 कितनी आ गई m1 बाय 2। सो ये रिलेशनशिप अपने कोल आ जाऊगा m2 बाय m1। तो ये तो अपने कोल अनदर डेफिनेशन की बनूगी, ठीक है, वो हैगी है under the similar conditions of temperature and pressures the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of molecular masses। जो ये वाला पिछला रिलेशनशिप है ये अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है जी वो बनी है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कि इक्वल हो गया द वॉल्यूम गैट डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन। हुण अगेन आप एक होर डेफिनेशन है जी वो बना ली है कि आप टाइम के नाल भी इनू डिफाइन कर सकते हैं ग्रैहम्स लॉ नू कि जिन्ना वॉल्यूम चेंज होया विद टाइम उहदे ते भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है जिहड़ा वो डिपेंड कर सकता है। नैक्सट जो है मान लो कि R1 रेट फॉर फर्स्ट गैस, ठीक है, तो वो आ जाऊगा R1 इक्वल्स टू V1 बाय T1 एंड R2 V2 बाय T2, ठीक है। दोनों की रेशो ले लाँगे ये आ जाऊगी तो वॉल्यूम V बाय T1 V बाय T2, ठीक है। तो ये अपने कोल बन चुका ρ2 बाय ρ1, ठीक है, ये वाला एक्सप्रैशन आ जाऊगा। फिर अगर V1 तो V2 दोनों इक्वल हो जाते हैं तो T1 तो T2 की रेशो अपने कोल की आ जाऊगी इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ रेशो ऑफ डेंसिटीज़ एंड इट बिकम्स इक्वल टू दिस इक्वेशन, अंडरस्टैंड। सो नैक्सट इज़ इफ़ टू गैसिज आर एट डिफरेंट प्रेशर्स। अगर दो गैसिज डिफरेंट प्रेशर्स के उपर है तो इक्वेशन किहड़ी आऊगी अपने कोल, तां विच अपने कोल प्रैशर भी आ जाऊगा। प्रैशर नूं इत्थे डिनोट किया स्मॉल p दे नाल, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जूगी R1 बाय R2 इक्वल्स टू P1 बाय P2 अंडर दी रूट P2 बाय P1, ठीक है। उस तो बाद ये इक्वेशन बन जूगी क्योंकि डेंसिटी है जो वो होंदी है डबल ऑफ मास दे, ठीक है। तो ये जिहड़े रिलेशनशिप्स है इन्हां रिलेशनशिप्स नूं यूज़ करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंदे हैं,
ठीक है। तो हरेक रिलेशनशिप नूं आपां नूं याद रखना पैना है कि टाइम दे नाल की रिलेशनशिप है, टैंपरेचर दे नाल की रिलेशनशिप है, प्रैशर दे नाल की है, तो टैंपरेचर दे नाल की है। हुण अगे आपां टैंपरेचर दे नाल पढ़दे हां कि गैसिस है जिहड़ियां टैंपरेचर दे नाल उहदा की बिहेवियर है, की इक्वेशन आउंदी है। तो R1/R2 अपने कोल की हो सकदी है T1 × ρ2 / T2 / ρ1 दिस इज इक्वल्स टू T1 × M2 T2 / M1 square under the root। The next है effusion। In a particular case of diffusion in which gas contained in a vessel are allowed to escape through the small hole। diffusion ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਹਮਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਇਫਿਊਜ਼ਨ। ਜੋ ਗ੍ਰੈਹਮਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ है। तो इंपॉर्टेंस की है, इंपॉर्टेंस आप स्टार्टिंग दे विच ही कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन सैपरेशन ऑफ गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़ बाय डिफ्यूजन। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटीज़ एंड मॉलिक्यूलर masses of unknown gases by comparing their rate of diffusion with gases। So third point is it helps in separating the isotopes of some elements। So next question is according to Graham's law, a certain gas G takes 4 times as long as to effuse out as hydrogen। What is molecular mass? The molecular mass calculate करना, ठीक है। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? R1 R2 R1/R2 equals to under root M1/M2। So let time taken by hydrogen to fuse। टाइम जिहड़ा हाइड्रोजन ने लिया फ्यूज़ होने दे लई वो मान लो कि x है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि जो रेशो R1/R2 दी हुंदी है वही रेशो T1/T2 दी हुंदी है। So time taken by hydrogen to fuse, let it x seconds for hydrogen, ठीक है। and for another gas ਜਿਹੜੀ unknown है ਉਹਨੇ 4 times लिया हैगा हाइड्रोजन ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ठीक है। तो for G it is 4x, ठीक है। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਹੁੰਦਾ, ठीक है। हाइड्रोजन दी जो मास है अपने फॉर गैस जो अननोन गैस है उहदा लिया 4x/x इक्वल्स टू अंडर रूट मास ऑफ जो अननोन गैस है वह पता नहीं है। हाइड्रोजन गैस का मास 2 है क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम का 1 होंदा है मास, तो 2 एटम्स का 2 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का मास 2 है तो ये आ जाऊगा x के नाल x कैंसल हो जू, इट बिकम्स 4/1 इक्वल्स टू this equation, and after solving it becomes 16 × 2 equals to 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज compare the which of the following two gases, ammonia and hydrogen chloride,
will diffuse faster and by what factor, ਕਿਹੜਾ faster diffuse ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ factor ਦੇ ਨਾਲ diffuse ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਫਾਸਟਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਇਟਸ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। Since molar mass of ammonia is less than HCl, so ammonia will diffuse faster। ਜਿਹਦਾ molar mass ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ faster diffuse ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਈ ਰੇਟ ਆਫ HCl। ਰੇਟ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ rate of HCl equals to under the root molecular mass of HCl by molecular mass of ammonia। Now molecular mass of HCl is 36.5 by molecular mass of ammonia is 17 under root। After calculation it becomes 2.174 equals to 1.46। so answer is B is right answer। so thanks for watching।